नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। कमोडिटी ट्रेडिंग इज अ ग्रेट वे टू अर्न मनी फॉर पीपल हु कैन एनालाइज complex patterns and predict the future prices of certain goods. These certain goods include crude oil, corn, gold, silver and other commodities. इन commodities के prices पर international factors का बड़ा influence होता है, इसलिए a commodity trader का न्यूज़ जंकी होना बहुत ज़रूरी है। commodity trader को political, economic and social factors का close analysis करके ही commodity prices के फ्यूचर बिहेवियर की इंसाइट मिलेगी। कमोडिटी ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स को दो तरीकों से डिक्लेयर किया जा सकता है। बिफोर वी टॉक अबाउट हाउ यू कैन डिक्लेयर प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम कमोडिटी ट्रेडिंग while filing your income tax returns, let's discuss what you can't declare such profits as. You cannot declare these profits as long-term capital gains because commodities are traded through derivatives like futures and options. Futures contracts and option contracts do not last for more than a year. और अगर कोई ट्रेड का मैच्योरेशन पीरियड 1 साल से कम है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर बिजनेस इनकम माना जाएगा। इफ यू फाइल योर प्रॉफिट्स फ्रॉम कमोडिटी ट्रेडिंग एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स देन अ फ्लैट टैक्स रेट ऑफ 15% विल बी अप्लाइड। पर अगर आप अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस इनकम के कॉलम के नीचे फाइल करेंगे तो एप्लीकेबल टैक्स रेट वेरी करेगा। डिपेंडिंग ऑन योर इनकम टैक्स स्लैब रेट, द टैक्स कैन वेरी फ्रॉम निल टू 30%। ये सुनकर शायद लोगों को लगे कि कमोडिटी ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स डिक्लेयर करने में ही चतुराई है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू कैप्चरिंग योर प्रॉफिट्स फ्रॉम कमोडिटी ट्रेडिंग एज बिजनेस इनकम। लेट्स डिस्कस अ फ्यू ऑफ दीज बेनिफिट्स। फर्स्टली, if you declare your commodity trading profits as business income, then you can claim a lot of deductions for things like depreciation of electronic tools you use to trade. अगर आप अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस इनकम में फाइल करते हैं तो आपको कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पर भी रिलीफ मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू फाइल योर प्रॉफिट्स एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स देन यू कैन नॉट अवेल दीज डिडक्शंस। द सेकेंड रीजन फॉर वाई फाइलिंग योर प्रॉफिट्स एज बिजनेस इनकम is preferable to filing them as capital gains has to do with managing your losses. No one gets their prediction rights 100% of the time. Commodity market में हर business venture की तरह कभी ना कभी आपको लॉस का सामना तो करना ही पड़ेगा। If you file your profits as capital gains, then you cannot adjust your losses against current or future capital gains. However, if you file your profits as business income, then you can adjust your losses against your capital gains as well as other sources of income such as rent, interest income, etc. Therefore, choosing business income gives you greater flexibility when it comes to offsetting your losses. In this case, setting your loss would mean a decrease in your total taxable income, which will slash your tax burden. Business income can be further divided into speculative and non-speculative income. Profits from trading that involved a physical transfer of the commodities is called non-speculative income. और अगर आपने डेरिवेटिव्स के थ्रू फिजिकल डिलीवरी लिए बिना कमोडिटीज ट्रेड किया है तो ऐसे ट्रेड्स के प्रॉफिट को स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट माना जाता है। रिमेंबर, स्पेक्युलेटिव लॉसेज इन द कमोडिटी मार्केट कैन ओनली बी ऑफसेट अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव गेन्स। मीनवाइल, नॉन स्पेक्युलेटिव लॉसेज कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट बोथ स्पेक्युलेटिव एंड नॉन स्पेक्युलेटिव गेन्स। Further, while speculative losses can only be adjusted in the current financial year and for the next 4 years, non-speculative losses can be carried forward in the current financial year as well as the next 8 years. So now you have all the information about the taxation on commodity trading. Choose your pick wisely. इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।